टेस्टिकुलर ट्यूमर, ओके। सो टेस्टिकुलर ट्यूमर यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं. Let's talk about little bit anatomy. So these are the testes, okay. So these are the testes and scrotum containing diaphragm muscle, okay. So these are the muscles. Scrotum septum, scrotal cavity, the empty space inside it. Raphe, the raphe like smooth muscles and shape. Cremaster muscle देख सकते हैं आप, ये जो दिख रही है यहाँ पे. एंड दीज आर द बोथ टेस्टीज, ओके. और यही टेस्टी से ये निकल जो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेट मी शो यू दिस थिंग, ओके, एपिडिडाइमस. एंड देन आफ्टर दिस वन इज बेसिकली वासा डिफरेंस, ओके. एंड नाउ दिस इज गोइंग फ्रॉम हियर एंड देन आफ्टर यहाँ से वो मूव करता करता इसके अंदर से बाहर आएगा, ओके. सो एक इस डायग्राम में और बेटर लगेगा आपको. सो दिस इज द टेस्टीज, this is the testes, this is the epididymis, and this is the vasa differentia, and then it will go and then after it will come through the penis. तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ. सो वी हैव सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स and then after we have recti testes, we have vasa differentia or difference, then we have epididymis, then after vasa differences and then urethra, okay. so particularly हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये है वो स्ट्रक्चर आपके सामने. तो ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है. जो इसके अंदर के सेल हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक एलिमेंट्स, और जो बाहर के सेल्स हैं, बाहर वाला स्ट्रक्चर, उन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स. और जो ये स्टोमा में आप देख रहे हैं, ये जो स्टोमा में आप देख पा रहे हैं, सो दिस इज द स्टोमा. सो दीज सेल्स आर बेसिकली लेडिक सेल्स, ओके. तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्पर्म यहाँ से बनते हुए निकलते हुए देख पा रहे होंगे आप. तो ये तो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, अंदरूनी जो सेल्स हैं ये हमारे स्पर्मेटोजेनिक हैं, और ये जो बाहर वाले हैं इन्हें हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं. So guys, usually we have particularly 3 type of cells, okay. So we have seminiferous tubule, the main tubule. This is the main tubule, seminiferous tubule, seminiferous tubule, seminiferous tubule, seminiferous tubule. So these all are seminiferous tubules. And then we have interstitial cell, the space, ये space वाले cell. तो दो प्रकार के सेल की हेडिंग आ गई. अब जो seminiferous tubules है, these have particularly 2 type of cell. One is spermatogenic and one is Sertoli cell. Okay, so one is spermatogenic and one is Sertoli cells. Okay, now the stoma is basically having interstitial cells of Leydig. So these are the Leydig cells. Okay, so these are the Leydig cells. Okay, now what is the function of germ cells? So germ cells basically help to produce sperm production. Okay, so these will help to produce sperm production, and the Leydig cells will help to produce testosterone. Okay, so these will help to produce testosterone, and the Sertoli cells will help to produce estrogen production. Is that clear, everyone? So we have germ cells, we have Leydig cells, we have Sertoli cells. Germ cell sperm production, Leydig cell testosterone, and Sertoli cell estrogen. ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है. These are the basics. Now let's see. We have also discussed the cells. Now the next, the functions. Spermatogenic जो है, germ cells जो हैं, which produce spermatocyte, spermatids and mature spermatozoa. तो spermatogenic तो आपके spermatozoa को produce कर रहे हैं. Sertoli cells क्या कर रहे हैं? Larger act as a supportive cells to germ cells, produce many androgen, testosterone and little estrogens. Leydig cell क्या करते हैं? Have abundant cytoplasm containing lipid granules, and these are the main source of androgens and testosterone. Very 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 important point. These are the main source of testosterone. Who? Leydig cells. And Sertoli, testosterone and little estrogen, but main कौन है? Leydig cells. Okay, now guys, let's talk about testicular cancer. So you can see here the testicular cancer is basically arises from germinal cells, यानी कि germ cells. और germ cells क्या produce करते हैं? Sperms. Okay, तो germ cell का कैंसर होता है. तो ये देख सकते हो आप, ये जो अंदर सेल दिख रहे हैं आपको, these are the germ cells. ये क्या है? germ cells. तो मोस्ट कॉमन कैंसर आपके टेस्टिकुलर कैंसर में जो मोस्ट कॉमन टाइप है
वो कौन सी आती है? 95% जर्म सेल ट्यूमर्स। ओके, सो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है? हिस्ट्री ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ एग्जांपल्स। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं 8-8 साल के, 9-9 साल के, वो आते हैं कंप्लेन लेके कि उनका एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस नहीं है। और आप लोगों को पता है कि जो जो टेस्टिस होते हैं, these are particularly testes are particularly embryonic stage में, यानी जब बच्चा 7 महीने का होता है तो एब्डोमिनल, इंग्वाइनल और फिर धीरे धीरे 8वें 9वें महीने के बाद उसके दोनों के दोनों टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, दोनों टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं। लेकिन दोनों टेस्टिस डिसेंड होने के बाद अब वो जन्म ले चुका है और अभी भी उसके टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए हैं। ये लोग ऑटोमेटिकली टेस्टिकुलर कैंसर की रडार में होते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन कोई 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा जो जिसका एक ही टेस्टिस है, एक नहीं है, तो अब कट करके एब्डोमेन से तो उतारना पड़ेगा उस टेस्टिस को। लेकिन उतारने के बावजूद भी वो बच्चा रिस्क पे होता है टेस्टिकुलर कैंसर के। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं असेसमेंट की, अगर मैं यहाँ पे रिस्क की बात कर रही हूँ, तो रिस्क क्या है? हिस्ट्री ऑफ अनडिस्टेंडेड टेस्टिकल्स। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो अनडिस्टेंडेड टेस्टिस होती है, दीज आर the babies, the patients are on risk for these cancers. Assessment के तौर पे बात करें तो the painless testicular swelling occur, तो patient will be like painless, उसको बिल्कुल दर्द नहीं होगा और swelling होगी वहां पर और enlarged size हो जाएगा। ड्रैगिंग एंड पुलिंग सेंसेशन एक्सपीरियंस इन द स्क्रॉटम, उसको कुछ अजीब सी खिंचाव, अजीब सा महसूस होता रहेगा, अजीब सा खिंचाव उसको क्या होगा? महसूस होता रहेगा। Palpable lymphadenopathy, abdominal masses and gynecomastia may indicate metastasis, तो पेशेंट जो है वो palpable lymphadenopathy, abdominal masses and gynecomastia जो है पेशेंट क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और लेट साइन क्या है? बैक एंड बोन पेन एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो गाइस अब ये लेट साइंस क्यों हैं? तो जैसे कि आपको मालूम है कि टेस्टिस का कैंसर है, ओके, और वो कैंसर जर्म सेल्स का है जो कि अंदर बन रहे हैं, और यही सेल्स बच्चे के रिलीज करते हैं स्पर्म्स को, उसके हार्मोन्स को, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि यही तो वो सेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलिनिक नेचर एंड द मसल स्ट्रॉन्ग एवरीथिंग। नाउ रेस्पिरेटरी मसल्स विल बी अफेक्टेड, बैक एंड बोन पेन्स विल बी अफेक्टेड, क्योंकि वो जो एक ग्रोथ होनी थी उस हार्मोन से वो प्रॉब्लम में है, दैट इज एन ऑल्ट्रेशंस। तो वो सेल्स जो है वो आगे बच्चे को जाके डेंजरस साइन हो सकते हैं, लेकिन लेट साइंस में आपको ये देखने को मिलेगा। ट्यूमर रिलैप्स द इंटायर टेस्टिस, तो ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे पूरी जगह फैल जाएगा। ग्रे व्हाइट कलर का अपीयरेंस, अब आप उन बच्चों के टेस्टिस को देखेंगे जिन बच्चों को टेस्टिस का कैंसर है, वो सफेद रंग के होंगे, व्हाइट कलर। ओके, सो कलर विल बी वेरी व्हाइट एंड पेल। यूजुअली टेस्टिस का कलर ब्राउनिश और मे बी ब्लैकिश कलर हो सकता है स्किन टोन के हिसाब से, बट दोस कैंसरस टेस्टिस विल लुक लाइक लिटिल पेल एंड व्हाइट। डायग्नोसिस में गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो भी पॉइंट्स होते हैं ये सिर्फ आपके जीके के लिए हैं, इनका वास्तविकता में हमारा कोई लेना देना नहीं है। KIT नाम का मार्कर आपको दिखेगा, OCT4 मार्कर आपको दिखेगा, प्लेसेंटल अल्कलाइन, मैं क्या बोला था मैंने? अल्कलाइन, राइट, जबकि मैंने वहां पे क्या बताया था? प्रोस्टेट एसिडिक, जबकि इसमें क्या होता है? अल्कलाइन फोस्फेटेस। वहां पर कैसा था? एसिडिक फोस्फेटेस। कहां पर? प्रोस्टेट कैंसर में। जबकि टेस्टिकुलर कैंसर में अल्कलाइन फोस्फेटेस होता है। नाउ गाइस, HCG अल्फा फिटोप्रोटीन, नॉर्मली किसी की बॉडी में भी ये रिलीज नहीं होती है प्रोटीन्स। अगर किसी की बॉडी में ये प्रोटीन रिलीज हो रही है, मतलब सेल क्या कर रहा है? अभी नया नया ग्रो कर रहा है, बन रहा है, तो मतलब ये किसका साइन है? कैंसर का। लेकिन टेस्टिस में ये प्रोटीन्स आपकी नेगेटिव देखने को मिलती है। टेस्टिकुलर कैंसर में आपको ना तो HCG देखने को मिलेगा, ना तो अल्फा फिटोप्रोटीन्स। एंड गाइस प्लीज डोंट थिंक कि अरे ये गाइनी का डाटा यहाँ क्या कर रहा है। गाइस दिस इज बेसिकली न्यू सेल्स, नए सेल्स बन रहे हैं। सोच लो कि बच्चा जन्म ले रहा है, इट्स लाइक न्यू सेल्स आर जस्ट डिवाइडिंग themselves, so these proteins will be negative, but usually these proteins are positive in cancer cell, but testicular में ये आपको नेगेटिव मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बात करते हैं इंटरवेंशंस के तौर पे, विच इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और चेक्टमी, यानी कि टेस्टिस को क्या कर दो? रिमूव कर दो। डिस्कस प्री ऑपरेटिवली अबाउट इनफर्टिलिटी, स्पर्म स्टोरेज, डोनर इंसेमिनेशन एंड अडॉप्शन, मॉनिटर फॉर द ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। रिपोर्ट करना है कब? अगर चिल्स,
fever because that is a sign for infection. Drainage, redness, discharge occur. Avoid heavy lifting, very very important question. हमको तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि क्या चीज प्रिवेंट करनी है आपने जिसको अभी भी सर्जरी हुई है. सो गाइस आपने क्या करना है, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, स्टेनस एक्टिविटीज फॉर 3 weeks. Instruct the to wear a scrotal support. Okay, it's just like a pad which support the scrotum and prevent the irritation of scrotum by wearing a dry dressing. Loose clothing, tight clothing नहीं डालनी है, loose डालनी है. Instruct to continue testicle self examination. टेस्टिस को नहाना है, गर्म पानी वगैरह में शावर लेना है और अपने टेस्टिस को क्या करना है, एग्जामिन करना है. प्रमोट रिपोर्ट एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग, और किसी भी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स अगर आपको लगती हैं तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है. सो गाइस दीज आर द इंटरवेंशंस इन केस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर. नाउ द नेक्स्ट कैंसर जो कि इसी के साथ लिंक्ड है, टेस्टिकुलर कैंसर के साथ ही लिंक्ड है, दैट इज ब्लैडर कैंसर. तो टेस्टिस के ऊपर जब प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के ऊपर बाहर की तरफ एंटीरियरली क्या पाया जाता है, ब्लैडर. ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर, पीछे प्रोस्टेट और उसके नीचे टेस्टिस. So guys, papillomatous growth of bladder, urothelium undergoes malignant changes, may infiltrate bladder well. वो पानी से उसको पानी जो फ्लूइड होगा, जो यूरिन होगा वो वहाँ पे रुका रहता है क्योंकि आपका जो ब्लैडर का कैंसर है वो सेल्स बड़े साइज ले लेते हैं और स्ट्रेचिंग भी उनमें होती है और काफी यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेन, इनफिल्ट्रेशन की जो कंप्लेन है वो रहती है. और वो यूरिन सिर्फ और सिर्फ उस ब्लेडर में ही नहीं, उस ब्लेडर के वॉल्स में भी एक्यूमुलेट इनफिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. तो कितनी बड़ी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है. असेसमेंट करोगे ग्रॉस, जो कि हमने एग्जामिनेशंस पढ़े हैं, पेनलेस हेमेचूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया, ब्लेडर बायोप्सी, कंफर्म डायग्नोसिस. तो ये सब जो है वो आपकी असेसमेंट के तौर पे हैं. इंटरवेंशन में आप रेडिएशन थेरेपी कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं. कीमोथेरेपी जब भी पेशेंट को देनी है तो आपको पता है, ट्रीट यूरिन एज बायोहाजार्ड, क्योंकि ब्लैडर का आपने कीमो दिया है तो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो रेडियो एक्टिव है, एक प्रकार से कीमो है उसके अंदर. सो आप उस यूरिन के अंदर जो है वो उस यूरिन को बायोहैजार्ड के वे में ही डिस्कार्ड करना है. दैट इज योर प्राइम मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट, 4-6 hours following intravesical chemotherapy, disinfect toilet with bleach after each voiding. तो आपने क्या करना है कि 4-6 hour फॉलोइंग जैसे इंट्रावेस्कुलर कीमोथेरेपी पेशेंट लेता है तो डिसइंफेक्ट कीजिए उसका टॉयलेट, किसके साथ, ब्लीच के साथ. कब, हर एक वॉइडिंग के बाद आपने उसे क्लीन करना है. यानी ब्लेडर में मैंने ये सीखा कि ब्लेडर का जो कैंसर होता है उसमें जब हम कीमो देते हैं तो ये जो यूरिन है दैट इज डेंजरस. ओके, दैट इज डेंजरस and we need to treat the patient for that. Now guys, next we will going to talk about breast cancer.